ختم ہوا دیوانوں کا انتظار، کرکٹ شائقین کے دل بےقرار۔ پاکستان کی سب سے بڑی لیگ کے لیے ابوظہبی میں میدان تیار۔ آج سے شروع ہوگی چھکے اور چوکوں کی بہار۔ PSL 6 کے بقیہ میچز کے لیے ہوگی دے مار 4:30۔ ایکشن دکھانا چاہتے ہیں تمام ٹیموں کے سپر سٹار۔ لاہور کے راشد کی جادوگری، شاہین کی اڑان، کنگز کے عامر کی سوئنگ، وہاب کی وکٹیں، ڈنک کے وار، گلیڈیٹرز کے اعظم خان کے چھکے۔ ایکشن ہوگا دھماکے دار۔ پہلے میچ میں رات 9 بجے اسلام آباد یونائیٹڈ اور لاہور قلندر آمنے سامنے آئیں گے۔ چیمپئن کراچی کنگز ٹائٹل کے دفاع کے لیے پرعزم۔ کپتان اماد وسیم کہتے ہیں تمام ٹیمیں برابر ہیں، جو ٹیم صحیح وقت پر مومنٹم پکڑ لے گی ایونٹ میں آگے جائے گی۔ پاک انگلینڈ کرکٹ سیریز پاکستان میں نہیں دکھا سکیں گے۔ فواد چودھری کہتے ہیں کسی بھی انڈین کمپنی سے کاروبار نہیں کر سکتے۔ PTV اور PCB کو خسارے کا سامنا کرنا ہوگا۔ میڈیا بریفنگ میں کہا پاکستان میں امریکی اڈوں کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، نہ ہی ایسی کوئی بات چیت چل رہی ہے۔ تمام فضائی اڈے پاکستان ہی کے استعمال میں ہیں۔ یہ بھی کہا ایک پھونک مار کر ریلوے کا نظام ٹھیک نہیں کیا جا سکتا۔ زرداری صاحبان اپنی پارٹی کو قوم پرست پارٹی بنانے پر تلے ہیں۔ ان کا خیال ہے پنجاب کے خلاف بول کر دوبارہ جگہ بنا لیں گے۔ کینیڈا میں سفید فام نسل پرست شخص نے پاکستانی خاندان کو گاڑی تلے رون ڈالا۔ پاکستانی نژاد سلمان اپنی ماں، بیوی اور بیٹی سمیت جاں بحق، 9 سالہ بیٹا شدید زخمی۔ پولیس نے واقعے کو نفرت پر مبنی جرم قرار دے دیا۔ مقدمے میں دہشت گردی کی دفعات شامل کرنے پر غور۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا واقعے پر اظہار افسوس، کہا نفرت انگیز اور نسل پرستی جیسے واقعات کے لیے کینیڈا میں کوئی جگہ نہیں۔ اسلاموفوبیا کو روکنے کے لیے ہر ممکن اقدام کریں گے۔ کینیڈین پارلیمنٹ میں جاں بحق خاندان کی یاد میں 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ واقعہ دہشت گردانہ حملہ قرار۔ وزیر اعظم عمران خان کی کینیڈا میں مسلم خاندان کے قتل کی شدید مذمت، کہا پاکستانی خاندان پر حملے کا سن کر افسوس ہوا۔ دہشت گردی کا واقعہ مغربی ممالک میں بڑھتے اسلاموفوبیا کی عکاسی کرتا ہے۔ عالمی برادری کو اسلاموفوبیا سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی بنانے کی ضرورت ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور معاون خصوصی علامہ طاہر اشرفی سے پاکستان میں تعینات کینیڈین ہائی کمشنر کی ملاقاتیں۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کینیڈا میں پاکستانی نژاد خاندان کا قتل اسلاموفوبیا کی واضح مثال ہے۔ قومی اسمبلی میں بھی کینیڈین واقعے کی گونج، رہنماؤں کی جانب سے واقعے کی مذمت، عالمی برادری سے اسلاموفوبیا کی روک تھام کے اقدامات کا مطالبہ۔ دنیا میں اسلاموفوبیا کو فروغ دینے والے فرانسیسی صدر میکرون کو تھپڑ پڑ گیا۔ فرانسیسی صدر انتخابی مہم کے دوران عوام کے سٹینڈ میں آ کر ہاتھ ملا رہے تھے، ایک شخص نے انہیں تھپڑ رسید کر دیا۔ صدارتی محافظوں نے بھاگ کر بچاؤ کیا۔ تھپڑ مارنے والے 28 سالہ شخص کو ساتھی سمیت دھر لیا گیا۔ فرانسیسی صدر میکرون ملک کے جنوبی گاؤں میں الیکشن مہم چلا رہے تھے۔ حکمرانوں کی کرپشن ہے وہ ملک کو تباہ کر دیتی۔ ان کے لوگ آتے ہیں اقتدار میں، جب وہ پیسہ بناتے تو اور بھی طاقتور پیسہ بنانا شروع ہو جاتا۔ اتنی طاقت تھی شوگر مل ایسوسی ایشنز کی، تو انہوں نے باقاعدہ دھمکی دی ہے FIA کو کہ اگر تم یہ پروو کرو گے تو ہم چینی غائب کر دیں گے اور اوپر چلی جائے گی قیمت۔ حکمرانوں کی کرپشن ملک کو تباہ کر دیتی ہے۔ مافیاز کرپٹ نظام سے فائدہ اٹھا رہے تھے۔ وزیر اعظم عمران خان کی کسانوں کے وفد سے ملاقات میں گفتگو، کہا چینی اسکینڈل کی تحقیقات پر شوگر مافیا نے FIA کو دھمکی دی کہ چینی غائب کر دیں گے۔ شوگر مافیا کی طاقت دیکھیں، ایک رات میں چینی کی قیمتیں بڑھا دیں۔ شوگر مافیا کسانوں کو پوری رقم نہیں دیتا تھا، مہنگی چینی بیچتا تھا۔ کسان رہنماؤں کا PTI کی حکومت پر مکمل اعتماد کا اظہار، مسائل سے آگاہ کیا۔ کسان رہنما خالد کھوکر نے کہا وزیر اعظم قوم سے کہتے ہیں گھبرانا نہیں، ہم وزیر اعظم کو کہتے ہیں گھبرانا نہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ وزیر اعظم کی کسان رہنماؤں کو مسائل کے حل کے لیے ٹھوس اقدامات کی یقین دہانی۔ فنڈز کی جنگ، ایک بار پھر وزیر اعلیٰ سندھ اور وفاقی وزیر اسد عمر آمنے سامنے۔ سندھ حکومت کا وفاق کے خلاف مزاحمت کا اعلان۔
वजीर आला मुराद अली शाह मरकज पर भड़क उठे, कहा 2 नहीं 1 पाकिस्तान चाहते हैं। वफाक को 70% रेवेन्यू सिंध से जाता है और ये कहते हैं स्कीमें सिंध हुकूमत को नहीं अवाम को देंगे। ऐसी जुबान इस्तेमाल ना करें, सिंध से ऐसा सलूक ना करें, ईस्ट इंडिया कंपनी ना बनाए, बर्दाश्त नहीं करेंगे। पंजाब को सिंध से ज़्यादा फंड्स देने का भी इल्ज़ाम, बोले एतराज़ पंजाब पर नहीं वफाक पर है। वफाक को तो ख़त लिखना भी छोड़ दिया, आखिरी ख़त में लिखा था कि शायद मैं बहरों से मुखातिब हूँ। वफाक सिंध के अवाम के लिए काम करता है, वफाक सिंध की हुकूमत के लिए काम नहीं करता। मैं सिंध के अंदर नाले साफ कर रहा हूँ, कचरा उठा रहा हूँ। तजावुजात जिसकी जिम्मेदार सिंध हुकूमत है, हटाने के लिए लोगों को मुआवजा वफाक अदा कर रही। वफाक सिंध हुकूमत नहीं अवाम के लिए काम करता है। वफाकी वजीर असद उमर का वजीर आला को जवाब, कहा वफाकी हुकूमत सिंध में 90 अरब के मंसूबों पर काम कर रही है। सिंध में नाले साफ कर रहे हैं, कचरा और तजावुजात हटा रहे हैं, वो काम भी कर रहे हैं जो सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है। इस पर वजीर आला कहते हैं छोटे काम क्यों कर रहे हैं, मुराद अली शाह तय कर लें सिंध में काम करें या नहीं। मावन खसूसी शहबाज गिल कहते हैं वजीर आला सिंध गलत आदादो शुमार ना दें। मुराद अली शाह के खतूत पर जायज़ जवाब दिया गया। मसला ये है ये कैश मांगते हैं, बार बार इन्हें बता चुके हैं कि कैश नहीं देंगे। लहर की ट्रेन हादसा, दाएं पटरी का जोड़ टूटने के बायस पेश आया। पटरी का जोड़ वेल्ड किया गया था जो ट्रेन गुजरने पर टूटा और मिल्लत एक्सप्रेस की बोगियां डाउन ट्रैक पर गईं। हादसे की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट मुकम्मल। हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद 66 हो गई, 9 की शनाख्त नहीं हो सकी, 100 से ज़ायद जख्मी। वजीर रेलवे आज़म स्वाति का हादसे के जिम्मेदार अफसरान को निशान इबरत बनाने का ऐलान, कहा मासूम बच्चों की लाशें देखकर पोते पोतियाँ याद आ गईं। आज़म स्वाति मीडिया टॉक के दौरान आबीदा हो गए। जाँ बहक अफराद के वर्सा को 15 लाख, जख्मियों को 50,000 से 3 लाख रुपए देने का ऐलान। रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। ISPR के मुताबिक हादसे का शिकार ट्रेन का इंजन और बोगियां ट्रैक से हटा दी गईं। हादसे के बायस कराची से जाने वाली 14 ट्रेनों की रवानगी मनसूख हुई। लहर की ट्रेन हादसा, कई घरानों पर क़यामत ढा गया, मुतादिद खानदान उजड़ गए। कराची में छुट्टियां गुजार कर घर वापस जाने वाला टोबा टेक सिंह का बदकिस्मत खानदान सफर आखिरत पर रवाना। मियाँ बीवी, 2 बच्चे, साली और भांजा शामिल। बदकिस्मत ट्रेन में सवार शाहकोट के एक ही खानदान के 4 अफराद अल्लाह को प्यारे हो गए। जड़ावाला का सज्जाद और उसका 3 साल का बेटा आतिफ भी जान से गए। बीवी और बेटी शदीद जख्मी हैं। लवाहिकीन के जख्मों पर मरहम कौन रखेगा, साहने का जिम्मेदार कौन, तयन अभी तक न हो सका। ट्रेन हादसा हुआ मगर हुकूमत को कोई नदामत या शर्मिंदगी नहीं, सब कुछ अपोजिशन पर डाल दिया। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं वफाक और पंजाब में पाकिस्तान की करप्ट तरीन हुकूमत है। दवाएं, चीनी, गंदम, ब्रॉडशीट, रिंग रोड और आटे में वज़रा पैसे खा गए। हमजा शहबाज का कहना है PTI ने पंजाब की तरक्की को रिवर्स गियर लगा दिया है, वही तबाही हो रही है जो खैबर पख्तूनख्वा में की। खाने को रोटी नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं और सर पर छत नहीं, फिर भी इमरान खान कहते हैं कि घबराना नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी की लफ्जी गोलाबारी, कहा मुशर्रफ दौर में 50% अवाम गुर्बत का शिकार थे। इमरान खान ने हालात को फिर उसी नहज पर पहुंचा दिया। इमरान खान की नाअहली से घर घर मौशी तबाही की दास्तान रकम हो रही है। वज़ीर मुमलिकत फरूख हबीब का बिलावल भुट्टो को जवाब, कहा रोटी, कपड़ा और मकान के नारे की आड़ में जरदारी ने मुल्क की दौलत लूटी। पर्ची चेयरमैन मगरमच्छ के आंसू बहाने के बजाय जखीरा अंदोज माफिया के खिलाफ एक्शन लें। क्या ये हमारे जो तरक्याती प्रोग्राम बन रहा है, क्या ये उन तरजीहात से मिलता जुलता है? ये नहीं नजर आता हमें उससे मिलता हुआ। तरक्याती अखराजात के अंदर बड़ी एक खातिर खा इजाफा देखने को नजर आ रहा है। अगले माली साल सरकारी शोबे के तरक्याती प्रोग्राम का हजम रवा साल से 36% ज्यादा और 2201 अरब रुपए होगा। वफाकी वजीर असद उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बताया बिजली तकसीम का निज़ाम की बेहतरी के लिए 100 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। पब्लिक प्राइवेट बोर्ड अथॉरिटी के लिए 240 अरब की मंजूरी दे दी है। पानी के शोबे के लिए 10% फंड्स मुख्तस किए जा रहे हैं। 3 बड़े डैमों के लिए 85 अरब रुपए रखे गए हैं।
चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा ने कहा, इस्लामाबाद हकला से DI खान सीपैक मगरबी रूट रवां साल के आखिर में खोल दिया जाएगा। खुशाब और आवरान तक शाहराह पर काम तेजी से जारी है। पसमानदा इलाकों पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। तनख्वाहें हम ज़रूर बढ़ाएंगे। सरकारी मुलाजमीन की मिनिमम वेज के ऊपर भी एक रिव्यू किया जाएगा। कितनी बढ़ानी है, वो एक पे एंड पेंशन्स कमीशन बना हुआ है, बाकायदा वो एक साइंटिफिक काम कर रहा है। आइंदा बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें ज़रूर बढ़ाएंगे। नए बजट में कम से कम उजरत पर भी नजरसानी की जा रही है। विफाकी वज़ीर तवानाई हमाद असर कहते हैं, पे एंड पेंशन सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह पेंशन पर काम कर रहा है। इनकम टैक्स स्लैब में तब्दीली होगी। कोशिश है टैक्स की शरह न बढ़े। इनकम टैक्स स्लैब को आसान करने जा रहे हैं। प्रोग्राम पावर प्ले में गुफ्तगू। आर्मी चीफ से अजरबैजान की बहरी अफवाज के कमांडर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, दिफा, तरबियत और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ की अजरबैजान को तरक्याती और दिफाई शोबे में भरपूर आनत की पेशकश। अजरबैजान के कमांडर ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। इनके पड़ोस का बच्चा मर गया, अल्लाह रहम। फिर निकाह तय हुआ, पड़ोस वाले की बीवी मर गई। फिर निकाह तय हुआ, पड़ोसी मर गया। खैर से कितना टाइम हो गया माशाल्लाह शादी? 6 महीने, लगभग 6 साल हो गए हैं। अरे कमाल है, 6 महीने में। जोश दीवानों का, PSL के परवानों का, क्रिकेट का मकबूल तरीन शो, हर लम्हा पुरजोश। कहूं की बरसात। नादिया खान और उनके शौहर से वसीम बादामी के मासूमाना सवालात। नादिया खान का कहना था, विंग कमांडर से 15 मिनट की पहली मुलाकात 4 घंटे तवील हो गई। यही वो लम्हा था जब एक फाइटर पायलट से शादी का फैसला किया। प्रोग्राम में आदि और आतिफ ने लगाया कॉमेडी का तड़का। नन्हे अहमद की शरारतें, क्रिकेटर राशिद लतीफ़ और तनवीर अहमद ने किया जानदार तज्जिया और तबसरा। हमारी आ रही हैं अभी 11, 12, 13 शादी। ये मेरा अपना ही है और आपको कोई परेशानी नहीं। कहीं पकड़े यार, एक होटल सील करवाना। कुरमा वाला है ना, नाजमा वाला, इसको सील करवाना। किस चीज़ के पैसे ले रहे हैं? किस चीज़ के पैसे लिए हैं? रिश्वत दो, शादी हॉल खुलवाओ, मुखालफिन की दुकानें सील कराओ, गैर कानूनी तामीरात भी करा लो। पाबंदी कोई बात नहीं, हॉल में शादी करें, असिस्टेंट कमिश्नर पहरा देगा। कराची के जिला वस्ती में अंधेर नगरी चौपट राज। SOPs पर अमल दरामद के जिम्मेदार इश्तियाक मंगी ने पैसों के एवज हुकूमत सिंध की पाबंदियों की धज्जियां उड़ा दी। ARY न्यूज़ के प्रोग्राम सरेआम का स्टिंग ऑपरेशन। असिस्टेंट कमिश्नर नासिमाबाद इश्तियाक मंगी बेनकाब। इश्तियाक मंगी ने पैसे लेकर हॉल में शादी की इजाज़त दे दी। 5 लाख रुपए के एवज इश्तियाक मंगी गैर कानूनी तामीरात के लिए भी तैयार। और तो और रिश्वत के बदले मुखालफिन की दुकानें भी सील कर दी। प्रोग्राम सरेआम की निशानदेही पर असिस्टेंट कमिश्नर नासिमाबाद इश्तियाक मंगी को मुअत्तल कर दिया गया। बहरिया टाउन ने सिंध वालों को रिहाइश का बेहतरीन मंसूबा दिया। बैनुल-अक़वामी तर्ज तामीर पर हाउसिंग स्कीम फराहम की। मुल्क में बड़ी सरमायाकारी लेकर आए, अवाम को रोजगार मिला। 2 रोज़ कबल बहरिया टाउन में जलाओ घेराव और तोड़फोड़ होती रही। मुश्तइल हुजूम ने रिहायशी प्रोजेक्ट में घुसकर तबाही मचाई। सिंध हुकूमत अमन व अमान यकीनी बनाने में मुकम्मल नाकाम रही। जब तामीरात हो रही थीं तो उस वक्त एहतजाज करने वाले कहाँ थे? बेहतरीन रिहायशी मंसूबे की जब मार्केट वैल्यू बढ़ी, उस वक्त ये करने का मकसद क्या? एहतजाज और जलाओ घेराव के पीछे क्या कोई सियासी एजेंडा और जमात मुलव्विस है? सवालात उठने लगे। मकीनों ने इंसाफ की उम्मीद लगा ली। बिल्डर्स और डेवलपर्स की आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस से नोटिस लेने की अपील। बहरिया टाउन में हंगामा आराई में मुलव्विस तमाम अफराद को सजाएं दी जाएंगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का ऐलान। कहा, कुछ लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ भी नारे लगाए। 11 में से 2 मुकदमात रियासत ने दर्ज कराए हैं। बहरिया टाउन को सुप्रीम कोर्ट ने ज़मीन दी है, उसे वहाँ तरक्याती काम की इजाज़त है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं, सिंध हुकूमत का मुंह सिर्फ वज़ीर आज़म के खिलाफ खुलता है। बहरिया टाउन में सिंध पुलिस तमाशाई बनी रही। सिंध हुकूमत बेहतरी के लिए काम करने वालों के लिए रुकावटें खड़ी ना करे।
मुल्क में कोरोना केसेस में कमी, गुज़श्ता 24 घंटों में टेस्ट मुस्बत आने की शरह 2.9% रही। 1383 नए केस रिपोर्ट हुए। 53 मरीजों का इंतकाल हुआ। सिंध के वज़ीर इत्तलात नासिर शाह से ताजिर एक्शन कमेटी के वफ्द की मुलाकात। सूबाई हुकूमत ने ताजिरों की वैक्सीनेशन की मुद्दत 15 यौम से बढ़ाकर 1 माह कर दी। सऊदी नायब वज़ीर सेहत कहते हैं कोरोना वैक्सीन की एक खुराक लेने वाले भी रवा साल हज अदा कर सकेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने FBR को जहांगीर तरीन की शुगर मिल्स के हतमी ऑडिट से रोक दिया। JW शुगर मिल्स और वफाकी हुकूमत के वकला दलाइल के लिए आज तलब। दरख्वास्त गुजार जहांगीर तरीन के मुताबिक FBR को 5 बरस गुजरने के बाद ऑडिट का इख्तियार नहीं, कानूनी अरसा गुजर चुका है। ऑडिट नोटिस कलदम और FBR को तादीबी कार्रवाई से रोका जाए। इश्तियाल अंगेज तकारीर के 21 मुकदमात इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने MQM रहनुमाओं की बरियत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। बरी होने वालों में फारूक सत्तार, वसीम अख्तर, ख्वाजा इजहार, रऊफ सिद्दीकी, सलमान मुजाहिद और दीगर शामिल। अपोजिशन ने हर मौके पर दोखलेपन का मुजाहरा किया। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की अपोजिशन पर वार, कहा मुफाद परस्त टोले को आवाम की कोई परवाह नहीं। अपोजिशन की किस्मत में रोना लिखा हुआ है, नाकाम इनकी किस्मत में सिर्फ नाकामी ही आएगी। उस्मान बुज़दार ने कहा वजीर आज़म इमरान खान की ईमानदारी के सामने करप्ट और लुटेरों की कोई हैसियत नहीं। कराची चिड़ियाघर में बब्बर शेर मर गया। डायरेक्टर चिड़ियाघर का कहना है बब्बर शेर तिब्बी मौत मरा। जंगल का बादशाह अमूमी उम्र पूरी कर चुका था। मौत की वजह शेर के दिल पर चर्बी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इंकशाफ। फॉर अ परफेक्ट फैमिली लाइफ जहां हकीकत भी एक ख्वाब लगे, ऐसे हर ख्वाब को ताबीर मिले ARY लगूना DHA सिटी कराची में, क्योंकि आने वाले दौर में ये है कराची। ARY लगूना DHA सिटी कराची के सारिफीन के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान के जदीद और मुनफरिद रियल स्टेट मंसूबे की बैलेटिंग का आगाज आज से होगा। और 13 साला पाकिस्तानी लड़के ने भारत से वर्ल्ड रिकॉर्ड छीन लिया। जनूबी वज़ीरिस्तान के मार्शल आर्टिस्ट नुमान महसूद ने 1 मिनट में 52 पिकअप्स लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। भारत के अमान क्षेत्रियाना ने 1 मिनट में 47 किपअप्स लगाकर आलमी रिकॉर्ड बनाया। नुमान महसूद 42 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाने वाले इरफान महसूद के शागिर्द हैं। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं ज़ारा अंसारी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया।